Hello students, myself Ajay Singh. This is my new video. In this video, we will discuss a new chapter. That chapter is the matrices. Let's start. मैट्रिक्स सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर मैट्रिक्स मैट्रिक्स है क्या सिंपली डेफिनेशन मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers or functions in horizontally and vertically just as an arrangement of numbers or function in horizontally or vertically and it is denoted by a capital letters A. कैसे करते हैं बेटा इसको देखिए स्टूडेंट्स are this denoted by a capital letters capital alphabet. Suppose A is a matrix and this can be written as 2 3 4 5 6 7 8 9 11. हमने क्या किया कुछ नंबर्स को अरेंज कर दिया वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रूप में. So this arrangement is known as matrix. Some important points about this matrix. This is the horizontally element arranged horizontally and such as arrangement are vertically. So these horizontally arrangement is known as rows. So horizontal arrangement of element is known as row. So row क्या है बेटा? Row horizontal arrangement. Horizontal arrangement of elements oblique numbers oblique functions and vertically arrangement is known as column. So column vertically arrangement of numbers number oblique function. यदि नंबर्स और फंक्शन को वर्टिकली अरेंज करते हैं ये वर्टिकली अरेंजमेंट जो होता है ये कहलाता है आपका कॉलम कहलाता है और हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट ये है दिस रो. दिस इज द फर्स्ट रो second row and this is the third row. So it is called first row represented by R1, second row represented by R2 and this is the third row represented by R3. Vertically, this is the vertically, so this is the first column, second column and this is the third column. So therefore this matrix A has 3 rows and 3 columns. So this can be written as a form of 3 by 3 means 3 rows and 3 columns. So it is called the order of matrix. Order of matrix. So here the order of matrix is 3 by 3. So generally in such case order of matrix is equals to 3 cross 3. 3 cross 3 means 3 rows and 3 columns. Now I would like to tell you order of matrix. Order of matrix. If M be the row
column of matrix. Then the order of matrix is equals to m cross n, and it is read as m by n. So the order of matrix is m by n, where m is the number of rows and n is the column. So its order is m by n. तो अभी जैसे लास्ट एग्जांपल में सपोज a matrix A equals to 3 2 5 1. So in this matrix there are two rows, first rows and second rows, and this is the first column and second column. So its order is 2 by 2. Therefore order of matrix A is equals to 2 by 2. Similarly, a matrix A equals to 4 5 6 7 3 2 9 1 11. So here there are 3 rows and 3 columns. So its order is 3 by 3. Therefore the order of this matrix is 3 by 3, and the order of this matrix is 2 by 2. तो यहाँ पर बेटा ये ऑर्डर इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3 है या 2 by 2 है. Generally, let a matrix, suppose a matrix is considered through the n elements, and it is denoted by ai1 a12 a23 like. And what is this? This is the element. अभी लास्ट एग्जांपल में बेटा जब समझाया था आपको कि a equals to 3 2 5 4. This is the matrix of order 2 by 2, and these are the element of the matrix. फर्स्ट रोज के जो एलिमेंट है वो 3 और 2 है. सेकंड रो के जो एलिमेंट है बेटा वो क्या है 5 4. अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम्स का जो एलिमेंट है तो आप कहेंगे सर 3 और 5 है. आपसे पूछा जाए सेकंड जो कॉलम है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या होंगे, सर आप कहेंगे सर 2 और 4. दीज आर द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. तो ऐसे ही हम एक जनरल वे में कैसे एक्सप्रेस करेंगे. अगर हमारा 3 by 3 का मैट्रिक्स है, 4 by 4 का मैट्रिक्स है, तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. आइए इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर जनरली हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया है a11 a12 a13 a1j a a21 a22, और इसको शो किया है if there are m rows and n columns. So its order is m by n. First, second, third, m rows हो गए तो m first column, second column, third column, nth column, ये आपको क्या m by n. The matrix A can be written as a I j. Generally इसके किसी भी एलिमेंट को, any element can be written as a I j m by n. I is greater than 1 and less than n, and j is also greater than 1 less than n, and I j is belong in n. अगर यहाँ पे बेटा I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, j की वैल्यू 1, तो हमें क्या मिलेगा, we got a11. I की वैल्यू 1 देंगे, j की वैल्यू 2, a12 a13. मतलब कि क्या शो कर रहा है, ये a1 बता रहा है कि ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बता रहा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बता रहा, फर्स्ट रो jth कॉलम बता रहा, फर्स्ट रो nth कॉलम को ये शो कर रहा है बेटा. ऐसे ही यहाँ पे ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम को बता रहा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बता रहा, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम को है, सेकंड रो jth कॉलम बता रहा है बेटा, ये सेकंड रो है और nth कॉलम को बता रहा. ऐसे ही बेटा इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को जनरली ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं. एंड मैट्रिक्स A इक्वल्स टू A I J
equals to m cross n. This can be written as here like matrix A is equals to Aij m by n. I is greater than or equal to 1 and less than equals to m, and j is greater or equal to 1 and less or equals to n. तो अगर i की वैल्यू 1 पुट करेंगे और j की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या मिल गया हमको a11 मिल गया, फिर 1 पुट किया j की वैल्यू 2। तो ये हम इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 8 2 3, तो आपसे पूछा गया 8 2 3 एलिमेंट कहाँ लाई करेगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये जो है सेकंड रो को इंडिकेट कर रहा है और थर्ड कॉलम को, यानी कि सेकंड रो और ये थर्ड, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। आपसे पूछा गया A33 बताइए कहाँ बिलोंग करेगा, तो कहेंगे सर थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा A33। तो इस तरह से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे A33 में। तो एलिमेंट का जो i और j है, मतलब ये ith और jth से पता कर सकते हैं कि एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में वो लाई कर रहा है। Now types of matrix. Types of मैट्रिक्स। आइए देखते हैं हम लोग किसी मैट्रिक्स अगर टाइप है कि किस बेसिस पे हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया है। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो A इक्वल्स टू, वी हैव मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 3 4। अगली मैट्रिक्स हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, लेट ए ये मैट्रिक्स अंदर एलिमेंट 2 3 4। तो देखो बेटा यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट रो, second row and this is the third row, and matrix has a single column. This is a single column. So if a matrix having a single column, then the matrix is known as column matrix. So such kind of matrix is known as column matrix. Number 1, column matrix. A matrix having m rows, m यहाँ पे कितनी rows है, m rows है, but one column. So matrix is known as column matrix, and the order of this matrix is 3 by 1. Its order is 3 by 1 because this matrix has 3 rows and 1 column. Second, suppose बेटा इसी मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं and the matrix A is given 2 3 4। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो सिर्फ सिंगल रो है, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आप कहोगे सर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 by 3। क्यों? बिकॉज दिस मैट्रिक्स हैव अ सिंगल रो एंड थर्ड कॉलम, 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम second column and third column. So matrix has 3 column and 1 rows. So such kind of matrix is known as row matrix because it has only 1 rows. So a matrix having only 1 rows is known as row matrix. So second is the row matrix. Row matrix. Matrix having only 1 row are known as row matrix. Are known as row matrix. A matrix having a single column is known as
column matrix. Now students, third type is square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर का सेंस है अ मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग number of row is equals to number of column, then the matrix is known as square matrix. Example देखेंगे बेटा, A is equals to 5 4 6 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कितने रोज हैं, फर्स्ट रोज एंड सेकंड रोज। कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। सो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ऑर्डर इज 2 by 2. The order of this matrix is 2 by 2. Similarly, let us another example. A equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is also a square matrix. Reason: first row, second row, third row, first column, second column and थर्ड कॉलम मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नोट कर लीजिए स्टूडेंट। नोट कर लिया? तो क्या दिखाने मिला, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आइए अगला करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत से टाइप्स के करने हैं, तो इन सभी को हम लोग 1 by 1 जो है देखते हैं और इसके बाद कुछ टाइप्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, वहाँ पे आप देखिएगा इसको। नोट कर लीजिए इसको। सो नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix. A matrix A is equals to Aij m by n is set to be diagonal matrix if its non-diagonal elements are 0। यानी कि जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल को छोड़ के उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। सपोज मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 3, यहाँ पर 0 0 0 4। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ये जो डायगोनल है इस डायगोनल के छोड़कर बाकी जितने के एलिमेंट्स मतलब क्या है, 0। तो क्या है, a matrix is said to be a diagonal matrix if its non-diagonal element are 0। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। और ऑर्डर क्या है इसका, 3 by 3। तो दिस इज द मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। इट इज द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स का क्या है, मेन डायगोनल है। 1 2 4, दिस इज द मेन डायगोनल। तो 1 2 4 आर द एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग जो है डायगोनल मैट्रिक्स को कर सकते हैं। अगर इसमें बेटा
ये पहले नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हैं डायगोनल के ये सेम हो जाए और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो जीरो हो जाए, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में a matrix Aij is said to be a scalar matrix if its non-diagonal elements are zero and diagonal element are same। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए यहाँ पर? सेम। तो एग्जांपल क्या होगा इसमें? बेटा देखिए यहाँ पे एग्जांपल, लेट A इक्वल्स टू मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 सपोज 3 0 0 0 3 0 0 0 3। दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। व्हाई? The diagonal element of this matrix has same, all the element of this matrix has 3 3 3, but non-diagonal elements are 0. So such type of matrix is known as scalar matrix. It is called the scalar matrix। means scalar matrix वो होगा जिसके diagonal के जो एलिमेंट है बेटा वो सेम होंगे, diagonal के एलिमेंट सेम होंगे और बाकी जो एलिमेंट है वो क्या होंगे? वो जीरो होंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। सो इट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के जो डायगोनल है उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। सो वी कैन से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? जीरो। सो एवरी a scalar matrix is also a diagonal matrix, but यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए देखते हैं कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। इफ अ मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मींस मैट्रिक्स उसके जो डायगोनल है वो 1 होना चाहिए एंड बाकी जो एलिमेंट है एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट शुड बी 0। सपोज A equals to 1 0 0 0 1 0 0 1। This is the identity matrix because the diagonal element of the matrix is 1 and non-diagonal elements are 0. So such type of matrix is called identity matrix, and identity matrix is denoted by I. So I equals to can be written as generally Aij m by n, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एलिमेंट्स क्या है हमारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे 0 है। इसको नोट कर लीजिए। तो जनरली और भी इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं वो हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनके रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। तो देखिए m by n है, इसको हम लिख सकते हैं n क्रॉस n लिख सकते हैं या m by m लिख सकते हैं, क्योंकि इनके ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि aij इक्वल्स टू 1 होगा, aij इक्वल्स टू 1 कब? जब I इक्वल्स टू j।
तो इस तरह से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद होता है जीरो मैट्रिक्स। अगला क्या है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो आर नोन एज जीरो मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो जाएंगे तो हमें क्या कहेंगे उस मैट्रिक्स को? जीरो मैट्रिक्स। सो इट इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये थे मैट्रिक्स की डिफिनेशन और टाइप, इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू।